سیارہ اتار 9 ستمبر سے حالت رجت میں جا رہا ہے اور یہ 2 اکتوبر تک اس حالت میں رہے گا 12 بروج پر اس کے کیا اثرات ہیں تفصیلات جاری ہے 9 ستمبر کو رات 11:38 بجے ET مرکری لیبرا میں پیچھے ہٹے گا اس کے بعد یہ 30 ستمبر کو کنیا میں دوبارہ داخل ہوگا اور پھر 2 اکتوبر کو کنیا میں براہ راست اسٹیشن پہنچے گا چونکہ یہ رجت لیبرا میں شروع ہوتی ہے جو کہ ہم آہنگی دوستی اور رومانس سے وابستہ ہوا کا نشان ہے اس لیے اب توقع کر سکتے ہیں کہ اس تجربے سے اب کے تعلقات میں کچھ بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوں گی تاہم یہ 8 ڈگری لیبرا سے بھی شروع ہوتا ہے جو کہ اسکارپیو ڈگری ہے اس پسپائی کے تجربے میں شدت اور جذبے کا ایک سایہ شامل کرتا ہے کوئی غلطی نہ کریں یہ پیچھے ہٹنا آپ کو اپنے رشتے کے صدمے کے گوبر سے گزرنے اور اس سے مضبوط اور گہری محبت کو گلے لگانے کے لیے زیادہ تیار ہونے پر مجبور کر رہا ہے ایک بار جب مرکری ریٹروگریڈ 24 ڈگری کنیا پر ختم ہو جائے گا یہ آپ کو ایک نئی شروعات کا ناقابل یقین حد تک شفا بخش وعدہ فراہم کرے گا کنیا ایک رقم کا نشان ہے جو ایک عملی منصوبہ کو پسند کرتا ہے جو آپ کو رشتے کے مسائل کو نیویگیٹ کرنے کے لیے ٹھوس ٹولز فراہم کرے گا اور چونکہ 24 ڈگری کو پائسیز ڈگری کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ ہمدردی اور معافی کے ساتھ منسلک ہے اب توقع کر سکتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ معافی قبول کرنے امن قائم کرنے اور آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوں گے آپ کے سورج کے نشان ابھرتے ہوئے نشان اور مرکری کے نشان کے مطابق اب کا خزاں مرکری کا پیچھے ہٹنا سفر کیسا نظر آئے گا برج حمل میش اپنے تعلقات میں گہرا غوطہ لگانے کے لیے تیار ہوں ہم آہنگی اور یکجہتی کے بارے میں اب کی پوری سمجھ بوجھ کا جائزہ لینے کا یہ وقت ہے کیونکہ عطاد 9 ستمبر کو اب کے شراکت کے 7ویں گھر میں پیچھے ہٹ جائے گا اس سے دل ٹوٹنے کے صدمے اور سابقہ مایوسیوں کا ڈنکا لگ سکتا ہے لیکن صرف اس لیے اب دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا دور ہے آپ ان واقعات کے بعد آئے ہیں اب ٹھیک ہو رہے ہیں میش در حقیقت اب شفا بخش رہے ہیں آپ نے کتنی ترقی کی ہے اس پر کارروائی شروع کرنے کا وقت ہے ایک بار جب عطار 30 ستمبر کو آپ کی صحت اور تندرستی کے چھٹے گھر میں واپس آ جائے گا جو کہ انتشار اور بے ترتیبی کے احساس کا باعث بن سکتا ہے تاہم یہ صرف آپ کو معمول کا احساس دوبارہ حاصل کرنے کی ترغیب دے رہا ہے اور آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ آپ کی خود کی دیکھ بھال کی رسومات کو کبھی قربان نہیں کیا جانا چاہیے آپ اپنی توانائی کو فضول حالات میں ضائع کرنے کے بجائے محفوظ کرنا شروع کرنے کے لیے تیار ہیں جانیے کہ آپ کس چیز کے حقدار ہیں کیونکہ ستمبر 2022 کے لیے آپ کا میش کا ذائچہ بتاتا ہے کہ آپ کے تعلقات کو گھماؤ کے لیے لیا جا رہا ہے یہ سب 2 ستمبر سے شروع ہوتا ہے جب لیبرا میں عطاد میش میں مشتری کی مخالفت کرتا ہے اور کسی کے لیے آپ کے جذبات کے بارے میں ایک بڑے انکشاف کی راہ ہموار کرتا ہے دیکھتے رہیں کیونکہ حالات جیسے بھی ہوں کچھ دلچسپ پیش رفت ہونے والی ہے تاہم یہ نہ بھولیں کہ عطاد 9 ستمبر کو آپ کے شراکت کے 7ویں گھر میں بھی پیچھے ہٹ جائے گا جس کا مطلب ہے کہ اس وقت رشتہ کا ڈرامہ ناگزیر ہو سکتا ہے یہ پیچھے ہٹنا آپ کے اور ایک عاشق دوست احاطہ کے دشمن کے درمیان غلط فہمیوں کا باعث بن سکتا ہے اور اگر آپ کے ماضی کے کسی کے ساتھ اب بھی نامکمل کاروبار ہے تو اس کا ایک اچھا موقع ہے کہ وہ دوبارہ ظاہر ہو جائے اور جب آپ کے روحانیت کے 12 گھر میں پورا چاند طلوع ہوتا ہے اور 10 ستمبر کو ختم ہوتا ہے تو آپ کو احساس ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی تاریخ کو پیچھے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں یہ تسلیم کرنے کا وقت ہے کہ آپ واقعی کیسا محسوس کر رہے ہیں یہاں تک کہ اگر یہ شفا یابی کے عمل کو چھلانگ لگاتا ہے جو لکیری سے بہت دور ہے 18 ستمبر تک آپ اپنے تعلقات میں ایک موسمی لمحہ آنے کی توقع کر سکتے ہیں کیونکہ مرکری ریٹروگریڈ میش میں مشتری کی مخالفت کرتا ہے ایک بار پھر یہ ایک ایسی گفتگو کو دوبارہ شروع کر سکتا ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ ختم ہو گیا ہے کیونکہ ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہنے کی ضرورت ہے اپنا سچ بولنے کے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں کیونکہ یہ کچھ بند ہونے کا وقت ہے مواصلت کلیدی ہے اور اگر آپ اور آپ کا ساتھی ایک دوسرے کے لیے جگہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ اعتماد کیسے پیدا کر پائیں گے اگر آپ کسی نہ کسی طریقے سے فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ 25 ستمبر کو ایک ساتھ مل کر ایک نیا باب شروع کرنے کے لیے تیار محسوس کر سکتے ہیں جب برج میں ایک نیا چاند آپ کی محبت کی زندگی اور آپ کی سماجی زندگی کا صفحہ پلٹ دے گا لیبرا 26 ستمبر کو میش میں مشتری کی مخالفت کرتا ہے آپ کو اپنے تعلقات میں خوش قسمتی سے وقفہ ہو سکتا ہے اگر آپ کسی سابقہ کو چھوڑ رہے ہیں
और दोबारा डेटिंग शुरू करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो आपको अंदाजा हो सकता है कि वाकई समंदर में बहुत सारी मछलियां हैं। अगर आप तवील मुद्दती शराकतदारी में किसी नाहमवार पेचीदगी पर काबू पा रहे हैं, तो आप एक दूसरे के लिए अपने जज्बात में दोबारा एतमाद महसूस करना शुरू कर सकते हैं। इस मुस्बत तवानाई को आपके पास से गुजरने न दें। जब आप अपने ताल्लुकात को मजीद गहराई से परवान चढ़ाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बुर्ज सौर, जब 9 सितंबर को अतार्द का पीछे हटना शुरू होता है, तो ये खुद की देखभाल की एक बड़ी तब्दीली टोरिस का आगाज करेगा। ये वक्त है कि आप इन आदात पर एक तवील नज़र डालें जिन पर आप इन्हिसार करते हैं, और वो मामूलात जो आपको आपके दिन में ले जाते हैं। क्या वो आपकी सबसे ज्यादा तरक्की की हिमायत कर रहे हैं? क्या वो आपकी तवानाई को ज़ाय किए बगैर आपको कामयाबी का एहसास दिला रहे हैं? अब वक्त आ गया है कि आप इन तरीकों, तर्ज अमल और रसूमात पर नज़र सानी करें जिनके जरिए अब जिंदगी गुजार रहे हैं। ताहम 30 सितंबर को ये पसपाई उसकी धन बदल देगी, क्योंकि ये आपके रोमानवी और तख्लीकी सलाहियतों के 5वें घर में दोबारा दाखिल होगा। जैसा कि ये उलझा हुआ सफ़र अपने इख्तिताम के करीब है, ये आपको इस बात पर दोबारा गौर करने पर मजबूर कर सकता है कि आप किस तरह खुशी तलाश करते हैं और अपनी ख्वाहिशात पर अमल करते हैं। हो सकता है कि आप इस वक्त के दौरान किसी पुराने शोले के बारे में सोच रहे हों, खास तौर पर अगर आप दोनों एक दूसरे के जिम्मेदार हैं कि ये क्यों काम नहीं हुआ। आपको एक मुनासिब अलविदा या एक मानी खेज नया हेलो के ख्याल से जिंदा महसूस हो सकता है। सूरज सरकारी तौर पर साथ ही जमीनी निशान कन्हैया से गुजर रहा है, जिसका मतलब है कि सितंबर 2022 के लिए आपका वर्षब का जायचा बरकतों से भरा हुआ है। ताहम इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक हमवार इजाफा होने वाला है, लेकिन 5 सितंबर को आपको खूबसूरत तवानाई का फरोग मिलेगा, क्योंकि ज़ोहरा आपका हुक्मरान सैयारा आपके मज़े और लज्जत के 5वें घर में दाखिल होगा, जो इसमें एक दिलचस्प मोहब्बत की जिंदगी की राह हमवार करेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपस में मिलने का वक्त आ गया है, और अगर आपको ले जाया जाता है तो ये चीजें हिलाने का वक्त है। ताहम 9 सितंबर को मरकरी आपके काम और सेहत के छठे घर में पीछे हट जाएगा, जो आपके पूरे मामूलात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकता है। लेकिन आपको मरकरी के पीछे हटने के दौरान कभी भी कमाल की तवक्को नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये बेहतरीन वक्त है कि आप चंद कदम पीछे हटें इससे पहले कि आप कई कदम आगे ले जाएं। और जब 10 सितंबर को आपके कम्युनिटी और नेटवर्किंग के 11वें घर में मैश में पूरा चांद तुलू होता है, तो आप अपने आप को अपने लोगों के साथ बहुत गहरी सतह पर जुड़ते हुए पा सकते हैं। अपनी टीम के साथ दोबारा राब्ता करें और दुनिया पर मुस्बत निशान छोड़ने का रास्ता तलाश करें। 18 सितंबर को आप अपनी रोजमर्रा की आम जिंदगी से और भी ज्यादा मुनक़ते महसूस कर सकते हैं, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड आपके रूहानी 12वें घर में मुश्तरी की मुखालिफत करता है। ये तवानाई हमारे अर्द गिर्द लेटने और ख्वाब देखने की ख्वाहिश को बढ़ा सकती है, यहाँ तक कि जब आपको कामों का एक पहाड़ मिल गया हो जो ढेर होते रहते हैं। याद रखें, आपकी कीमत आपकी पैदावारी सलाहियत से कहीं ज्यादा है। आप एक इंसान हैं, मशीन नहीं, लिहाजा अपने आप को अपनी अंदरूनी नफ्सियात को दरियाफ्त करने के लिए वक्त दें। बुर्ज जौज़ा, तैयार हो जाओ। जेमिनी, अतार्द आपका हाकिम सैयारा है, जिसका मतलब है कि ये रजत आपको शदीद सतह पर मुतासिर करने का पाबंद है। जब ये 9 सितंबर को शुरू होगा, तो ये आपके लज्जत, हवस और तख्लीकी सलाहियतों के 5वें घर में पीछे हट जाएगा, जो आपके मौजूदा रिश्ते में गर्मी को कम कर सकता है और आपको फनकाराना तौर पर घुटन का एहसास दिलाता है। ताहम एक अच्छा मौका है कि आप किसी पुराने आशिक से दोबारा राब्ता कर सकते हैं, जो आपको इस एहसास की याद दिलाएगा जिसकी आपको कमी महसूस हुई है। यहाँ तक कि ये आपको एक तख्लीकी प्रोजेक्ट लेने की तरगीब दे सकता है जिसे अपने तर्क कर दिया है, और जहाँ से अपने छोड़ा है इसे शुरू करें। एक बार जब अतार्द 30 सितंबर को आपके घर और ख़ानदान के चौथे घर में दोबारा दाखिल हो जाएगा, तो ये आपके लिए अमल करने का एक और भी शदीद तजर्बा बन जाएगा। जैसा कि ये पसपाई अपने इख्तिताम के करीब है, आप अपने आप को ख़ानदान से मुताल्लिक़ ज़ख्मों के बारे में सोचते हुए महसूस कर सकते हैं जिनको भरने की ज़रूरत है। लिहाजा इस मौका को उन लोगों से बात करने का फ़ायदा उठाएं जिसके साथ आपकी तारीख़ बहुत तवील है। खुशकिस्मती से ये पीछे हटने से आपको घर की कुछ इंतहाई ज़रूरी सफाई सुथराई शुरू करने में भी मदद मिलेगी, और यकीनन मौसम ख़िज़ां के लिए सजावट। आप इसमें एक जज्बाती रोलर कोस्टर सवारी के लिए तैयार हैं, लेकिन कम अज़ कम इसका मतलब है सितंबर के लिए आपका जीवनी जायचा 2022 बोरिंग नहीं होगा। दरहकीकत
یہ چھلانگ سے ہی دلچسپ ہے کیونکہ عطارد اب کا حکمران سیارہ اب کے دوستوں اور جاننے والوں کے 11 گھر میں مشتری کی مخالفت کرے گا اور اب کی سماجی زندگی کو سنسنی خیز حد تک بڑھا دے گا۔ تاہم اب کی سماجی حرکیات زیادہ دیر تک ایک جیسی نہیں رہیں گی، اس لیے موڑ کے لیے تیار رہیں۔ تاہم جب 5 ستمبر کو رومانوی اور پیار بھرا زہرہ اب کے آرام دہ اور خوش آئند چوتھے گھر میں داخل ہوتا ہے تو یہ آپ کو بیرونی دنیا سے وقفہ لینے اور اپنے انتہائی قابل اعتماد عزیزوں کے ساتھ اپنی محفوظ جگہ میں وقت گزارنے کی ترغیب دے گا۔ اس توانائی کو آپ کو اپنے دل کے مرکز میں واپس لانے دیں، خاص طور پر ایک بار جب مرکری اسٹیشن 9 ستمبر کو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور آپ کے رومانوی اور خوشی کے 5ویں گھر میں ڈرامہ شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر رہے ہیں تو یہ جذبہ کو کم کر سکتا ہے، اور جب آپ کم از کم اس کی توقع کرتے ہیں تو ایک بوڑھا عاشق لکڑی کے کام سے باہر نکل سکتا ہے۔ یہ کچھ قریب حاصل کرنے کا وقت ہو سکتا ہے۔ جب 10 ستمبر کو میش میں پورا چاند آپ کے کیریئر کے شعبے کو روشن کرتا ہے تو آپ عوام کی نظروں میں سامنے آنے کے لیے بڑی پیش رفت کی تیاری کر سکتے ہیں۔ ایک موقع ہے کہ آپ اپنی تمام محنت سے کچھ اہم تعریفیں حاصل کرنے والے ہیں، لہذا اسپاٹ لائٹ سے دور نہ ہوں۔ تاہم اگر آپ اپنا گن نہیں لا رہے ہیں تو آپ کے اعلیٰ افسر کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے۔ برج سرطان، ہو سکتا ہے کہ اب گھریلو فرد ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر اس کے مسائل کے بغیر ہے۔ کینسر، کیا آپ کے کمرے میں کپڑے دھونے کا ڈھیر ہے جسے آپ طے کرنے سے انکار کر رہے ہیں؟ کیا آپ اور آپ کے رشتہ دار اختلاف کا سامنا کر رہے ہیں؟ کیا آپ گھر میں رہنے کے مزے لینے کے لیے اکثر کام کرتے ہیں؟ جیسا کہ مرکری اسٹیشنز 9 ستمبر کو آپ کے گھر اور خاندان کے چوتھے گھر میں پیچھے ہٹ رہے ہیں، یہ آپ کو اپنی جڑوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک کرنے کی ترغیب دے گا۔ جب اپنا پودے لگا رہے ہیں اسے پانی دیں۔ گھر وہ جگہ ہو سکتی ہے جہاں سے ہم آئے ہیں، لیکن یہ وہ جگہ بھی ہے جہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جب مرکری 30 ستمبر کو آپ کے مواصلات کے تیسرے گھر میں واپس آ جاتا ہے تو یہ مواصلاتی حادثات کا باعث بن سکتا ہے جو دباؤ والی غلط فہمیوں میں بدل جاتا۔ آپ اپنے ماضی کے لوگوں سے سن سکتے ہیں، خاص طور پر اگر اب بھی کوئی نامکمل گفتگو باقی ہے جسے بند کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو بہن بھائیوں اور قریبی دوستوں کے ساتھ مل بیٹھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یہ پسپائی ممکنہ طور پر آپ میں سے کسی کو اس کے بارے میں بات کرنے کی ہمت تلاش کرنے پر مجبور کر دے گی جو آپ کو پریشان کر رہی ہے۔ آپ اس مہینے میں بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور ستمبر 2022 کے لیے آپ کا سرطان کا ذائچہ آپ کو آنے والی چیزوں کا ذائقہ دے گا۔ یہ مہینہ ایک اعلیٰ نوٹ پر شروع ہوتا ہے کیونکہ مرکری 2 ستمبر کو آپ کے کیریئر کے 10 گھر میں مشتری کی مخالفت کرے گا، جس کی وجہ سے آپ اپنی تازہ ترین کامیابی کے حوالے سے پریس ریلیز بھیج سکتے ہیں۔ تاہم یہ کچھ ایسی معلومات پر بھی روشنی ڈال سکتا ہے جن کے بارے میں آپ کو پہلے علم نہیں تھا، لہٰذا اہم کاموں کو آخری لمحات تک نہ چھوڑیں۔ ایک بار جب مرکری اسٹیشن 9 ستمبر کو پیچھے ہٹ جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی ذاتی زندگی کا ڈرامہ ابھی سامنے آنا شروع ہو رہا ہے۔ آپ کے گھر اور خاندان کے چوتھے گھر سے پیچھے ہٹتے ہوئے مرکری آپ کو کچھ حل طلب مسائل دکھانے والا ہے جو ابھی تک آپ کے گھریلو دائرے میں پڑے ہیں۔ چاہے آپ گندے گھر کی صفائی کر رہے ہوں یا اپنے والدین کے ساتھ اعصاب شکن گفتگو کر رہے ہوں، یہ پیچھے ہٹنا آپ کو آہستہ آہستہ مسئلے کو حل کرنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ جب 10 ستمبر کو میش میں پورا چاند آپ کے علم اور فلسفے کے نویں گھر کو روشن کرے گا تو یہ آپ کو کھلے ذہن اور ایمان کو برقرار رکھنے کی یاد دلائے گا۔ ایک قدم پیچھے ہٹیں اور پوری تصویر دیکھیں، کیونکہ خامیوں پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کرنا آپ کی صلاحیت کو اس خوبصورت طریقے سے دیکھنے میں رکاوٹ ہے جس طرح سب کچھ ایک ساتھ آ رہا ہے۔ برج اسد، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا پاؤں اپنے منہ میں ڈال رہے ہوں جبکہ عطارد پیچھے ہٹ رہا ہے، لہٰذا بولنے سے پہلے سوچنا یاد رکھیں۔ بہرحال یہ پسپائی آپ کے رابطے کے تیسرے گھر میں ہوگی جو ایسی گفتگو کو جنم دے سکتی ہے جو بہترین نوٹ پر ختم نہیں ہوتی تھی۔ اچانک جواب دینا شروع کرنے کے لیے بھوت والے لوگوں کے لیے تیار ہوں۔ تاہم سب سے اہم چیز جو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ تمام خط و کتابت کو 3 گنا چیک کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے اہم دستاویزات کا بیک اپ لے رہے ہیں، کیونکہ ٹیک غلطیاں ناگزیر ہو سکتی ہیں۔ ایک بار جب مرکری آپ کے مالیات اور املاک کے دوسرے گھر میں پیچھے ہٹ جاتا ہے تو یہ آپ کو اس بات پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کر دے گا کہ آپ قیمت رکھنے کے لیے کیا انتخاب کرتے ہیں۔ آپ آخر میں خالی محسوس کرتے ہیں۔
ताहम अपने आप को आसान तरीन लज्जतों के साथ बर्ताव करने से सिर्फ इसलिए इनकार करना कि आप कंजूस महसूस कर रहे हैं आपको सिर्फ एहसास कमतरी में मुब्तला कर देगा। ये सब तवाज़ुन के बारे में है बेबी। आप इस महीने बहुत सी यादें बना रहे हैं और अगरचे सितंबर 2022 के लिए आपका ल्यू जायचा उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, लेकिन आपकी मसरूफ शमसी वापसी के बाद ताज़ा हुआ का सांस महसूस हो सकता है। ताहम इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक हमवार सवारी होगी, क्योंकि मरकरी 2 सितंबर को आपके बेसाख्ता और एडवेंचर के नवीं घर में मुश्तरी की मुखालफत कर रहा। आप गैर मुतवक्के तब्दीलियों की तवक्को कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके साथ जाने को तैयार हैं, बहाव आपको गैर मुतवक्के जगहों पर बहुत सारी खूबसूरत सच्चाइयां मिल सकती हैं। जब मरकरी स्टेशन 9 सितंबर को पीछे हटते हैं, ताहम अब पहले से कहीं ज्यादा उलझन महसूस करना शुरू कर सकते हैं, चूंकि ये पीछे हटना आपके मंतिक और इबलाग के तीसरे घर में पेचीदगियों को जन्म देता है। आप महसूस कर सकते हैं कि गलत फहमियां आपको गैर आरामदेह समतों में धकेल रही है। बाज़ औक़ात किसी मसले को हल करने का बेहतरीन तरीका यह है कि उसे तन्हा छोड़ दें और अपने आप को सोचने के लिए वक्त दें, और अगर आप चीज़ों को खुद काम करने के लिए जगह देते हैं तो वो शायद। ताहम जब 10 सितंबर को मैश में पूरा चांद आपके 8वें घर मौत और पुनर्जन्म को हिलाकर रख देता है, तो आप अपने आप को मनफी से पाक करते हुए और अपनी जिंदगी में बेकार वजन को छोड़ते हुए महसूस कर सकते हैं। अगर आपको अब भी किसी डेड एंड जॉब या किसी ऐसे रिश्ते के जरिए घसीटा जा रहा है जो कहीं नहीं जा रहा है, तो ये पूरा चांद आपको अपने इख्तियारात पर दोबारा गौर शुरू करने के लिए दरकार धक्का हो सकता। बुर्ज सुंबुला ये कन्हैया का सीजन है, जिसका मतलब है कि आप इस बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं कि अपने पिछले एक साल के दौरान एक शख्स की हैसियत से कितनी तरक्की की है। ताहम जैसा कि मरकरी आपका हुक्मरान सैयारा स्टेशन 9 सितंबर को पीछे हिट रहे हैं, ये आपकी पूरी इज्जत नफस को चैलेंज करेगा, खास तौर पर अगर आप तमाम गलत चीजों पर अपनी शर्त लगा रहे हैं। आपके इस्तेहकाम और खुद मुख्तारी के दूसरे घर में जगह लेकर ये पीछे हटना आपको ये महसूस कर सकता है कि आपको किसी ऐसी चीज की जरूरत है जिसे आप पूरा नहीं कर सकते। ताहम ये आपको ये चैलेंज भी करेगा कि आप अपनी अक़दार को हम आहंग करने के लिए किस चीज का इंतखाब कर रहे हैं, इस पर दोबारा गौर करें। जब मरकरी रेट्रोग्रेड 30 सितंबर को कन्हैया में दोबारा दाखिल होता है, तो ये यकीनी तौर पर चीजों को एक निशान बना देगा। आप अपने आप को जिस अंदाज में देखते हैं और जिस अंदाज में आप अपना इजहार करते हैं, इस पर नजरसानी करते हुए महसूस कर सकते हैं। जैसा कि आपका मरकरी का पीछे हटना सफर अपने इख्तिताम के करीब है, आप अपनी जिंदगी के साबिका अदवार में होने वाली गलतियों के लिए खुद को मुआफ करने के लिए हौसला अफजाई महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आप अब बेहतर जानते हैं। आपको जिल्लत आमेज तजुर्बात से पीछे मोड़कर देखने की जरूरत नहीं है। अपने आप को वो दें जो आप किसी दूसरे को देने के लिए तैयार होंगे जब वो शर्मिंदा हों। थोड़ी सी समझ अब सीजन की वजह है, और सितंबर 2022 के लिए आपका कन्हैया का जायचा हैरतों से भरा हुआ है। अतार्द आपका हुक्मरान सैयारा इस महीने में बहुत सारी शरारतें करने वाला है, जो कि दिलचस्प और असाब शिकन है। ताहम ये सब 2 सितंबर से शुरू होता है, जब अतार्द आपके 2 और लेने के 8वें घर में मुश्तरी के साथ मुखालफत करता है, आपके ताल्लुकात में ताकत की जिदोजहद को नुमाया करता है। यहाँ तक कि अगर आप किसी चीज पर भरोसा करने के लिए तैयार महसूस करते हैं, तो आप खुद को खतरे की कैफियत में डालने के बारे में इतना ही घबराहट महसूस कर सकते हैं। ताहम एक बार जब मरकरी स्टेशंस 9 सितंबर को आपके पैसे के दूसरे घर में पीछे हिट जाते हैं, तो आप इस बात पर नजरसानी शुरू कर सकते हैं कि आप कीमत को किस चीज में रखने का इंतखाब करते हैं। इस गिल्लुक पर पेच डालें इससे पहले कि आप किसी ऐसी चीज पर पैसा ज़ाय करें जिसकी आपको वाकई जरूरत नहीं है। याद रखें, पैसा आपकी तारीफ नहीं करता, लेकिन जब आप अपना बैंक अकाउंट चेक करते हैं तो ये यकीनी तौर पर आपके तनाव की सतह की वजाहत कर सकता है। जब 10 सितंबर को मैश में पूरा चांद आपके शिराकत के 7वें घर को रोशन करता है, तो ये ताल्लुकात में कुछ अहम पेशरफ्त का बाइस बन सकता है। इस बात पर ध्यान दें कि आप जो बॉन्ड किसी के साथ बांटते हैं वो कैसे खिलता है। क्या ये आप में सबसे अच्छी चीज निकालता है? क्या आप एक जहरीला मुतहर्रिक में शिराकत करते हैं? ये वक्त हो सकता है कि आप अपने रिश्ते की शराइत पर दोबारा गौर करें, जबकि उन हिस्सों को तस्लीम करें जो उसे खूबसूरत बनाते हैं। बुर्ज मीज़ान, तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि इस अताद के पीछे तुम्हारा नाम है। लफ्जी तौर पर आपके नफस के पहले घर में होने के बाद
मरकरी 9 सितंबर को पीछे हट जाएगा और ये तजर्बा खुद की मुकम्मल दोबारा तशखीस का बाइस बन सकता है। तुम कौन हो? तुम और नहीं, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि जब किसी और को आपकी जरूरत हो तो आप कौन होते हैं। मैं इस शख्सियत के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जब आप उन लोगों को खुश करने वाले अप मोड में होते हैं। मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं लिब्रा। ये इस शख्स को याद करने का वक्त है जो आप हमेशा रहे हैं, खास तौर पर अगर आपने इस शख्स को किसी और की जरूरियात की खातिर अलग कर दिया है। एक बार जब मरकरी रेट्रोग्रेड 30 सितंबर को आपके रूहानियत और शिफा के 12 घर में दोबारा दाखिल हो जाएगा तो इस ट्रांजिट का लहजा और भी ज्यादा गहरी और अंदरूनी चीज में बदल जाएगा। मरकरी के पीछे हटने के आखिरी मरहले के दौरान आपको मालूम हो सकता है कि आपके ख्वाब ज्यादा वशुद हो गए हैं और आपके जज्बात और भी शदीद दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अपने तमाम एहसासात के साथ तन्हा महसूस कर रहे हैं तो याद रखें, हर चीज का इश्तिराक करने के लिए नहीं है। कुछ चीजें बहुत मुक़द्दस होती हैं, वो सिर्फ आपके लिए होती हैं। अगरचे आप एक हल्के दिल वाले हवाई निशान हैं जो आपको ठंडा रखने की पूरी सलाहियत रखते हैं, लेकिन सितंबर 2022 के लिए आपका लिब्रा जायचा ये साबित करता है कि आपको यकीनी तौर पर एक जंगली पहलू मिला है। और जब लिब्रा में अतार्द आपकी शिराकत के 7वें घर में मुश्तरी की मुखालफत करता है तो इस महीने के शुरू होते ही आप किसी रिश्ते के बारे में पूरी तरह पुरजोश महसूस कर सकते हैं। ताहम ये कहानी अभी शुरू हुई है और आपकी जिंदगी बहुत दिलचस्प होने वाली है। आखिरकार 9 सितंबर को अतार्द पीछे हट जाएगा और चूंकि ये रजत आपके पहले घर में वाक़े हो रही है, इसकी वजह से आप अपना अक्स बिल्कुल नई रोशनी में देख रहे हैं। ताहम पुरएतिमाद और खूबसूरत महसूस करना आपके जहरीले अंदाज में मरकजी हैसियत रखता है। यही वजह है कि अगर आप खुद पर बहुत ज्यादा सख्ती कर रहे हैं तो ये पसपाई खुद की तस्वीर के कुछ संगीन मसाइल का सबब बन सकती है। इन लोगों के साथ वक्त गुजारें जो आपके लिए आपसे प्यार करते हैं, उन लोगों के साथ नहीं जो आपको ये महसूस करते हैं कि आप काफी नहीं हैं और आपका सख्त तरीन नक्काद बनना छोड़ दें। ये यकीनी तौर पर मदद नहीं कर रहा है। खुशकिस्मती से पाइसीज में पूरा चांद 10 सितंबर को होता है जो आपको खुद से मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा फराहम करेगा। चूंकि ये पूरा चांद आपके काम और सेहत के छठे घर में होता है, ये आपको उन रसूमात और तर्ज अमल की तरफ लौटने की तरगीब दे रहा है जो आपको ये महसूस करने में मदद करती है कि आप टॉप शक्ल में काम कर रहे हैं। खुद की देखभाल में कोताही न करें। बुर्ज अकरब अपनी नफ्सियात स्कॉर्पियो में गहरा गौता लगाने के लिए तैयार हूं। बहरहाल मरकरी 9 सितंबर को आपके रूहानी 12 घर में पीछे हट रहा है जो आपको आपके कुछ अंदरूनी शैतानों से आमने सामने ला सकता है। ताहम आपकी कामयाबी की ख्वाहिश आपके किसी भी खौफ से ज्यादा मजबूत है, खास तौर पर जब आपके जज्बात भी आपकी सबसे ज्यादा हौसला अफजा कुव्वत हों। अगरचे आप इस वक्त के दौरान ज्यादा पुरसुकून और महफूज महसूस कर सकते हैं, समाजी मंजर से ये वक्फा आपके लाशूर को एक मौका फराहम करता है कि वो जो गायब हो रहा हो से इकट्ठा करें। जब मरकरी रेट्रोग्रेड 30 सितंबर को आपकी कम्युनिटी के 11 घर में वापस आता है तो ये आपकी समाजी जिंदगी में दिलचस्प पेशरफ्त का बाइस बन सकता है। हो सकता है कि आप अपने आप को एक पुराने हल्के के दोस्तों के साथ दोबारा जोड़ते हुए पाएं जिनसे आप अलग हो गए हैं। आपको ये देखने का मौका फराहम करते हैं कि आया आपके आइडियल अब भी मुवाफिक है। आपको ये भी मालूम हो सकता है कि गलत फहमियां एक ग्रुप मुतहर्रिक में इख्तिलाफ पैदा कर सकती है, लिहाजा जब मुश्तरका एतमाद पैदा करने की बात आती है तो इजाफी एहतियात बरतें। क्या आप अपनी अंदरूनी नफ्सियात को दरियाफ्त करने के लिए तैयार हैं? सितंबर 2022 के लिए आपका स्कॉर्पियो जायचा कहता है कि अब वक्त आ गया है कि उन तमाम जज्बात को दूर किया जाए जो आपके अंदर मौजूद हैं। चूंकि आपके रूहानियत के 12 घर में अतार्द 2 सितंबर को वसी मुश्तरी के साथ मुखालफत करता है, इस बात का एक मौका है कि आपके लाशूर से आने वाले नज़ारे आपको कुछ गहरी बैठी सच्चाइयों से आगाह कर सकते हैं जिनको पहचानने की जरूरत है। अगर आप पहले से ही उलझन महसूस कर रहे हैं तो जहन में रखें कि ये सिर्फ शुरुआत है। जब मरकरी स्टेशंस 9 सितंबर को पीछे हट जाएंगे तो आप अपने ख्वाबों के इंतहाई जंगली होने की तवक्को कर सकते हैं, इसलिए सुबह बेदार होने पर जो कुछ आपको याद होगा इसे लिखना याद रखें। जैसा कि ये पीछे हटना आपके बदेही 12 घर की तश्कील नो करता है, आप याद कर रहे हैं कि किस चीज को याद रखने की जरूरत है और जिसको ठीक करने की जरूरत है। इससे आपको बाज़ औकात तन्हाई का एहसास भी हो सकता है,
گویا اب جس سے گزر رہے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا۔ تاہم آپ کو یہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ محبت ہمیشہ تک پہنچتی ہے، خاص طور پر ایک بار جب مینس میں پورا چاند آپ کے رومانس اور تخلیقی صلاحیتوں کے 5ویں گھر میں آپ کی بیداری لے آتا۔ 10 ستمبر کو ہونے والا یہ پورا چاند فنکارانہ کوششوں کے ذریعے کی تھرسس تلاش کرنے میں آپ کی مدد کر رہا ہے، لہذا اپنے اندرونی بچے کے ساتھ دوبارہ رابطہ قائم کرنے اور اپنے اندرونی جذبات اور خواہشات کا اظہار کرنے کی اپنی خواہش پر عمل کریں۔ برج قوس واب محسوس نہیں کر رہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ مرکری 9 ستمبر کو آپ کی کمیونٹی کے 11 گھر میں پیچھے ہٹ رہا ہے، جس سے آپ کو پارٹی چھوڑنے کا احساس ہو سکتا ہے، حالانکہ آپ ابھی پہنچے ہیں۔ اگر آپ اپنے گروہ کے ساتھ باہر ہیں تو یہ بات چیت کرنے اور غلط ہونے کی تہہ تک پہنچنے کا وقت ہو سکتا ہے۔ تاہم یہ آپ کے دوست گروپ میں کسی بھی طرح کی پریشانی کی نشاندہی نہیں کر سکتا ہے، اس کے بجائے یہ پرانے ساتھیوں، جاننے والوں اور ٹیم کے ساتھیوں کے ساتھ دوبارہ رابطہ قائم کرنے کے عمل سے بات کرتا ہے جن سے آپ کا رابطہ ختم ہو گیا ہے۔ سب کے بعد ان کے پاس آپ کو سکھانے کے لیے کچھ ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں بہت کچھ سیکھنے کی تیاری کریں کہ ٹیم ایک دوسرے کے خلاف کام کرنے کی بجائے ایک ساتھ کام کرنے کی کیا وجہ ہے۔ ایک بار جب مرکری 30 ستمبر کو آپ کی ساکھ اور سماجی حیثیت کے 10 گھر میں واپس آ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے کیریئر میں کی گئی کچھ غلطیوں کو پورا کر سکیں۔ آپ اپنے پرانے باس یہاں تک کہ اپنے سابق سرپرست سے دوبارہ رابطہ قائم کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کچھ مشورے ہو سکتے ہیں جو آپ کو نئی طاقت کے ساتھ آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ اس تصویر پر دوبارہ غور کرنے کا وقت ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں، خاص طور پر اگر آپ کا مجموعی برانڈ اب آپ کے حقیقی نفس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ آپ کی سماجی زندگی اس مہینے میں بہت زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے، اور ستمبر 2022 کے لیے آپ کا ذائقہ یہ ثابت کرتا ہے۔ در حقیقت یہ ممکنہ طور پر آپ کو محبت میں بھی برکات لائے گا۔ آخر کار 2 ستمبر کو عطارد آپ کے تفریح اور لذت کے 5ویں گھر میں مشتری کی مخالفت کرے گا، جو آپ کی زندگی کا وقت گزارنے کی خواہش کو اجاگر کر رہا۔ آپ اس پرجوش خوشی کو محسوس کرنے کے مستحق ہیں جو صرف اس وقت حاصل ہوتی ہے جب زندگی اپنی سب سے خوبصورت ہو۔ تاہم آئیے یہ نہ بھولیں کہ یہ مہینہ ابھی شروع ہوا ہے، اور 9 ستمبر تک آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے نیٹ ورک کے درمیان تنازعات پیدا ہونے لگے ہیں۔ مرکری آپ کی برادری کے 11 گھر میں پیچھے ہٹ جائے گا، جو آپ کو اپنے ارد گرد کے لوگوں سے اختلاف کر سکتا ہے، یہاں تک کہ یہ سوشل میڈیا پر کچھ عجیب و غریب مقابلوں کا باعث بھی بن سکتا ہے، لہذا ٹرولز کے ساتھ بحث کرنے کی اپنی خواہش اور ان ڈیٹنگ ایپس میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کرنے کے اپنے جذبے سے ہوشیار رہیں۔ ایک بار جب 10 ستمبر کو میش میں پورا چاند آپ کے گھر اور خاندان کے 4تھے گھر میں آپ کی آگاہی لے کر آتا ہے تو یہ آپ کو اس بات پر توجہ مرکوز کرنے کی یاد دلائے گا کہ واقعی کیا اہمیت ہے۔ اگر آپ کا گھر گڑبڑ ہے، آپ کو اپنے رشتہ داروں کی کمی محسوس ہوتی ہے اور آپ اپنے مرکز کو مضبوط کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ وقت ہے کہ گھریلو معاملات کو سنبھالیں اور اپنی زندگی کے گرد گرم کمبل لپیٹ۔ برج جدی اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی ٹاپا شخصیت کو تھوڑی دیر کے لیے الگ کر دیں، کیونکہ مرکری 9 ستمبر سے آپ کے کیریئر کے 10 گھر میں پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اس سے آپ کے کچھ پیشہ ورانہ منصوبوں پر اثر پڑے گا، خاص طور پر اگر وہ متزلزل ہو رہے ہوں۔ ساتھ شروع کرنے کے لیے زمین۔ جب کام سے متعلق مسائل کو حل کرنے کی بات آتی ہے تو یہ باکس سے باہر سوچنے کا وقت ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ کسی پر انحصار نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے لیے ایسا کرے۔ تاہم یہ چیلنجز آپ کو یہ بھی یاد دلائیں گے کہ اپنے ماضی میں اسی طرح کے مخمصوں سے کیسے نمٹا۔ آپ ان تجربات کو کیسے لے سکتے ہیں اور انہیں اپنے اگلے اقدام سے آگاہ کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ ایک بار جب عطارد 30 ستمبر کو آپ کے ایڈونچر اور حکمت کے 9ویں گھر میں واپس آ جاتا ہے تو یہ آپ کو کچھ غیر متوقع جگہوں پر لے جا سکتا ہے، خاص طور پر اگر یہ مقامات آپ کے لیے واقف ہوں۔ یہ ایک ایسے فلسفے کے ساتھ دوبارہ جڑنے کا وقت ہے جس پر آپ نے کبھی یقین کیا تھا، کیونکہ یہ بحران کے لمحے میں آپ کی مدد کرے گا۔ کبھی کبھی ہم اس حکمت کو بھول جاتے ہیں جو ہم نے پہلے ہی کمائی ہے، اور ہمیں بس اسے یاد کرنے کے لیے وقت نکالنا ہے، یہاں تک کہ اب کسی فکری منصوبے پر اپنا کام دوبارہ شروع کرنے اور وہی رفتار دوبارہ حاصل کرنے کے لیے حوصلہ افزائی محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک سابقہ ہم جماعت پروفیسر آپ کو یاد دلاتا ہے کہ آپ زندگی کے ابدی طالب علم ہیں، سیکھنے کے لیے ہمیشہ بہت کچھ ہوتا ہے۔
18 सितंबर तक मरकरी का पीछे हटना बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि ये एक बार फिर आपके रोमानवी और खुद इजहार ख्याल के 5वें घर में मुश्तरी की मुखालफत करता है। ये आपको पुराने दोस्तों के साथ दोबारा जड़ने का बाइस बन सकता है, और शायद किसी पुराने चाहने वाले के साथ दोबारा जड़ने। अगर आप माजी में ठोकरें खा रहे हैं तो वहां अपने दौरे से लुत्फ अंदोज हों, लेकिन याद रखें कि आप वहां ज्यादा देर नहीं रह पाएंगे। जो कुछ आप पर वजन कर रहा है इससे बंद होने का एहसास तलाश करें। चूंकि ज़ोहरा आपके घर और खानदान के चौथे घर में नेपच्यून की मुखालफत करती है, इस बात का इम्कान है कि घर की परेशानियां आपके करियर से आपकी तवज्जो का कुछ हिस्सा चुरा सकती हैं, खास तौर पर अगर आप अपने आप को वहां से फटे हुए महसूस कर रहे हैं जहां आप गए थे और आप कहां जा रहे हैं। ताहम एक बार जब 25 सितंबर को लिबरा में एक नया चांद स्लेट को साफ कर देता है, तो ये आपको अपने समाजी हल्के के साथ अपने ताल्लुक को दोबारा कायम करने और ये जानने का मौका फराहम करेगा कि आपके ताल्लुकात कहाँ खड़े हैं। ये नया चांद आपकी उम्मीदों और ख्वाबों के 11वें घर में भी लगेगा, जिसकी वजह से ख्वाहिश करना और आपकी मिसाली हकीकत को जाहिर करना एक ताकतवर नया चांद है। बुर्ज दलो थोड़ा सा खोए हुए महसूस कर रहे हैं कूब। अगर ऐसा है तो ये कोई ताजुब की बात नहीं है, क्योंकि मरकरी 9 सितंबर को आपके सफर और तौसी के 9वें घर में पीछे हट जाएगा। ये आपको एक गैर मुतवक्के रास्ते पर ले जा सकता है, लिहाजा ऐसे रास्ते और ताखीर को कबूल करें जो आपको कम सफर करने वाली सड़क पर जाने पर मजबूर करते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको कोई सुराग नहीं है कि आप कहाँ हैं, जिंदगी का मकसद हर लम्हे जीपीएस के साथ जीना नहीं है। हुआ को आपको ऐसी जगह ले जाने की इजाजत दें जो दिलकश भी हो और सामना भी। ये इन लम्हात के दौरान होता है जब आप बेहंगम महसूस करते हैं कि आप अपने ईमान के एहसास को गहरा करते हैं, क्योंकि जिंदगी में हमेशा आपको घर लाने का एक तरीका होता है जब आपको लगता है कि आप मुकम्मल तौर पर रास्ते से हिट चुके हैं। ताहम जैसा कि मरकरी 30 सितंबर को आपके तब्दीली के 8वें घर में वापस आ रहा है, आप अपने आप को अपनी जिंदगी में महसूस किए गए कुछ दर्द से निजात पा सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने आप को किसी चीज पर मातम करते हुए पाएंगे या कोई जिसे आपको तर्क करने पर मजबूर किया गया था, चाहे अब चाहिए या ना करे। अपने जज्बात पर कार्रवाई करने में अपना वक्त निकालें, क्योंकि आप मुमकिना तौर पर अपने कुछ पेचीदा एहसासात को दबा रहे हैं। जैसे ही आप इस चीज का सामना करना शुरू कर देते हैं जो आपको परेशान कर रही है, इसका आप पर कमजोर होना शुरू हो जाता है। जब आपको लगता है कि आपने सब कुछ समझ लिया है, तो जिंदगी हमेशा आप पर एक करियू बाल फेंकने का तरीका रखती है। तैयार हो जाएं, क्योंकि सितंबर 2022 के लिए आपका कूब जायचा बताता है कि आप इस महीने कुछ गैर मुतवक्के जगहों की तलाश कर रहे हैं। 2 सितंबर को आपके एडवेंचर के मुतलाशी 9वें घर में अतार्द मुश्तरी की मुखालफत करेगा, आपके निचोड़ से ज्यादा रस हासिल करने की आपकी ख्वाहिश पर टेक करेगा। अगर आप गैर मुतासिर महसूस कर रहे हैं तो यह वक्त है कि सच्चाई को मजीद गहराई में खोद कर इसका अजाला करें। आखिरकार 9 सितंबर को मरकरी पीछे हटेगा और आपको गैर मुतजलजल रास्ते को तलाश करने की तरगीब देगा। अगरचे अब बाज़ औकात नाकाबिल यकीन हद तक खोए हुए महसूस करेंगे और ताखीर और हुदूद की वजह से मायूस होंगे, लेकिन ये पसपाई आपकी बेदारी को जिंदगी के मानी तक पहुंचा रही। ये आपको याद दिलाता है कि जिंदगी जीने के लिए है, ज्यादा जोर देने के लिए नहीं। इन फलसफों से दोबारा जुड़ें जो आपको अपने इर्द गिर्द की दुनिया से गहरे ताल्लुक के साथ एक बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। एक्वा एक बार जब 10 सितंबर को मैश में पूरा चांद आपके पैसे के दूसरे घर को बेदार कर देता है, तो आप समझ रहे होंगे कि क्रेडिट कार्ड की सवाब से हर मसला हल नहीं हो सकता। दरहकीकत इस्तेहकाम आपकी माली हैसियत से कहीं ज्यादा गहरी चीज से पैदा होता है, लिहाजा अपने पैरों के नीचे जमीन को महसूस करें और याद रखें कि आपकी जड़ों को आखिरकार पानी की जरूरत है। बुर्ज हूत हो सकता है कि आप कर्जों का तस्फिया करने और अपनी सरमायाकारी पर मुनाफा की सतह का अंदाजा लगाने के मोड में हों। मैं बहरहाल मरकरी 30 सितंबर को आपके लेन देन के 8वें घर में पीछे हट जाएगा, जिससे कुछ माली मसाइल पैदा हो सकते हैं जिन पर अभी भी आपकी तवज्जो दरकार है। अगर रकम का हिसाब नहीं है तो ये मालूम करने का वक्त है कि ये कहाँ गया है, खास तौर पर अगर आपके असासे खास तौर पर मुनज़्ज़म नहीं हुए हैं। ताहम इस रजत पसंदी का पैसे से कम और जाने देने और आगे बढ़ने के अमल से ज्यादा ताल्लुक हो सकता है। आप अपने आप को ये महसूस कर सकते हैं कि आप उसकी मियाद खत्म होने की तारीख से गुजर चुके हैं। ये अमन कायम करने और अपने आप को आज़ाद करने का वक्त है। ताहम
जैसा कि मरकरी 30 सितंबर को आपकी शराकत दारी के 7वें घर में पीछे हट जाता है, ये आपके माजी के किसी फर्द को दोबारा जिंदा करने का सबब बन सकता है, चाहे ये शख्स साबिक प्रेमी हो, एक साबिक BFF या यहाँ तक के एक साबिक कारोबारी साथी। अब दोनों के दरमियान नामुकम्मल कारोबार है जिसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। जैसे ही ये पसपाई खत्म हो रही है, अब खुद को इससे भी ज्यादा गहरी समझ में आ रहे होंगे कि ये शख्स आपके लिए कौन था, और जितना ज्यादा आप अपने साबिका रिश्तों को समझना शुरू करेंगे, इतना ही आप अपने मौजूदा ताल्लुकात को समझेंगे। तारीख को अपने आप को दोहराने की इजाजत ना दें। पाइसीज, आप एक नाकाबिल यकीन हद तक हसास आबी निशान है, जिसका मतलब है कि आप हमेशा हर किसी की तवानाई से जुड़े रहते हैं। दरहकीकत सितंबर 2022 के लिए आपका मैश जायचा कहता है कि इस महीने के शुरू होते ही आप अपने आप को किसी के अज़ाइम से बखूबी आगाह करते हुए महसूस कर सकते हैं। जब आपके बदेही 8वें घर में अतार्द 2 सितंबर को मुश्तरी के साथ मुखालफत करता है, तो ये आपको ऐसी सूरत हाल की तह तक पहुंचने का इशारा दे सकता है जो आपको बेचैन कर रही है। अपने तफ्तीश कार की टोपी पहने, क्योंकि आप हर एक सुराग को तोड़ रहे हैं। ताहम एक बार जब मरकरी स्टेशन 9 सितंबर को पीछे हट जाएंगे, तो आपको मालूम होगा कि गहरे राजों का पर्दाफाश होना शुरू हो गया है। यहाँ तक कि आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि आपके माजी का एक देरीना तनाज़ा दोबारा जिंदा हो जाता है, जो आपको सूरत हाल को बिल्कुल मुख्तलिफ रोशनी में देखने का इशारा देता। याद है कि आप कैसा महसूस करते थे? हाँ, ये एक बहुत वक्त पहले की बात थी। मीनस, अगरचे ये पीछे हटना आपको गहरी सच्चाइयां दिखा सकता है, लेकिन ये ताकत की कुछ कशमकश का बाइस भी बन सकता है, खास तौर पर अगर साबिका और पुराने दुश्मन अभी भी आपकी तवानाई को दूर कर रहे हैं। 10 सितंबर को मैश में पूरा चांद तुलू होने के बाद आपके पास सच्चाई का एक ताकतवर लम्हा होगा, जो आपकी तवज्जो दूसरों की राय की बजाय अपनी राय पर मरकूज करेगा। अब वक्त आ गया है कि अपने आप को देखें कि आप वाकई कौन हैं, इन रिश्तों और सरमायाकारी से बाहर जिनसे आप वाबस्ता है। आप अपनी सच्चाई में कदम रख रहे हैं और दुनिया के सामने अपनी आज़ादी का ऐलान कर रहे हैं। आपके पास ऐसी सलाहियतें हैं जो कोई भी आपसे नहीं छीन सकता।